Okay, I think we should start with the questions that were absolutely based on the yesterday's concepts, same as the yesterday's questions. I hope Natasha, कुछ questions बनने की स्थिति हुई है आपकी या नहीं हुई है? Sir, trying to solve. Okay, fine. But I hope you understood some little bit concepts by lecture 1. Yes, sir. Yes. Okay, fine. At least you are knowing homozygous, heterozygous, and all those. Am I right? Yes, sir. Yes, yes. Okay. Vaibhav Katkade. Vaibhav Katkade, is this your first class? Dr. Vaibhav, is this your first class? Okay, fine. All those new candidates who joined late, though I'm not committing that everything will be covered in recovery classes, but yes, you can go through the videos and you can ask me the doubts. Whenever I'll get the time, definitely I'll resolve your doubts first. Okay, Dr. Vaibhav? Fine. We are dealing with the chapter Classical Genetics, unit number 2, class 12, chapter 1. We already finished with reproduction, human reproduction and reproductive health. Or I should say the 3 chapters: reproduction in organisms, human reproduction, reproductive health, and now switch to principle of inheritance and variation. Am I right, Priya? Those 4 chapters we are done? Yes, sir. Okay. Actually done with the reproduction in organisms, chapter number 1, class 12, unit 1. Chapter number 3, that is human reproduction, and chapter number 4, reproductive health. These 3 chapters are completely finished. And Priya, if I'm not wrong, we have conducted one test also. Is it? Yes, sir. On this topic only. Perfect. Then we have started revision for most of the students. Like principle of inheritance and variation. And first, it is first time for a handful of students, those who are studying or learning those chapters from me, first time. Still, there are some new admissions that are not well aware with the principles of inheritance and variation. So I suggest them, please go through the videos. At least once वो वीडियो को देख लें, NCERT को पढ़ लें. Definitely 30 to 40% doubts will be solved. Vaibhav and I should say Natasha. But still, if there will be some questions or confusions, definitely we will conduct a session for you people. Right? Okay. So let us start with the questions that I shared on the group. Priya, what was the first question? 3,200 plants in a dihybrid cross. Find out number of double homozygous plants. 3,200 plants in F2 of dihybrid, is it? Yes, sir. Perfect. So this is the data given for solving all the questions. Visibility is clear, Priya? Yes, sir. Okay. 3,200 plants in F2 of a dihybrid cross. Then the question number 1. Lokesha, answer the question number 1. What was the question and answer this? Lokesha. Number of double homozygous plants. Number of double homozygous plants. Is it? Answer Yes, बोलिए. sir. Answer सर 16 में 4 तो 3,200 में 800. आपसे पूछे गए थे डबल होमोजाइगस प्लांट. ओके, परफेक्ट. तो 16 में निकले 4. हाँ. 4 3,200 में 800. Answer is 800. Is it? Yes, Perfect. sir. Perfect. Dr. Aditi Das, question number 2.
True hybrid plants. Two hybrid plants. Yes, आंसर बोलिए. 1200. 1200. I think ट्रू हाइब्रिड पूछा गया ना आपसे. सो ट्रू हाइब्रिड 16 में कितने मिला दीदी आपको? 6 sir. ट्रू हाइब्रिड प्लांट 16 में 6. अच्छा, आपने ट्रू हाइब्रिड जो है वो फिनोटाइपिकली देखा. परफेक्ट. Yes चलेगा. sir. परफेक्ट. तो 16 में मिले आपको 6. अब सवाल है कि ट्रू हाइब्रिड जो है वो फिनोटाइपिकली देखकर तो हम नहीं बता सकते कि वो ट्रू हाइब्रिड है या नहीं. ट्रू हाइब्रिड की जहां तक बात आती है तो ट्रू हाइब्रिड केवल ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो जीनोटिपिकली आपको देखना होगा. यानी लाइक दिस. ओनली दिस इज ट्रू हाइब्रिड. ट्रू हाइब्रिड, व्हाट डू यू थिंक? एनीवन कैन डिस्कस विद मी कि ट्रू हाइब्रिड यू कैन जज बाय फिनोटाइपिकली और जीनोटिपिकली. Genotypically. Genotypically. True hybrid केवल, yes, true hybrid can be only judged or be determined by I should say by genotype. So Dr. Das, now correct your answer. In 16.4. So 800. Perfect. किसी को भी कोई डाउट होता है तो जस्ट टेल मी कि सर इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है. क्वेश्चन नंबर 3 प्रथमेश जाधव. क्वेश्चन नंबर 3 प्रथमेश जाधव. Yes, sir. क्वेश्चन बोलिए. Sir, आंसर. plants that are dominant for at least one trait. Dominant for at least one trait. हाँ, आंसर बोलिए. 3200 into 15 divided by 16 is equal to 3000. अच्छा, dominant for at least one trait. तो 9 3 12 3 15. 16 में 15 निकाले आपने. Is it? Yes, sir. परफेक्ट प्रथमेश भाई, मजा आ गया. सो 3200 में करीब करीब हो गया. 16 में 15 तो 3215 डिवाइडेड बाय 16, 3000. प्रथमेश, इज इट? Yes, sir. Perfect. Very good. Very good. So I will go for question number 4 with Riya Kothavde. Riya Kothavde, question number 4. Yes. Question number 4. What is question number 4? And give the answer also. Tell me. Non-parental plants. Non-parental plants. Just a minute. Non-parental plants. Okay. Tell me the answer, Riya. 16 में 6. Non-parental plants 16 में 6. Very nice. 16 में 6 तो 3200 में into 6 by 16 यानी लगभग 1200. Yeah, is it? Yes. Perfect. Very good. चलिए. Question number 5. दिया परदेसी. Question number 5. Yes, sir. क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए. Perfect homozygous plants. परफेक्ट. 16 में 2 तो homozygous plants. परफेक्ट होमोजाइगस पूछे गए ना आपसे. ओके, तो 16 में कितना निकाला आपने? 16 में 2 तो 3200 में it should be like 400. 400. Perfect. Very good. ठीक. Janvi, question number 6. Dominant for one but recessive for other.
dominant for one and recessive for other. Dominant for one and recessive for other. Okay. सर 16 में 6 तो टोटल 1200. Perfect. 16 में 6 तो 3200 में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 1200. Is it? Yes sir. Perfect. Very good. Disha, am I audible? Disha Randal. Okay. Disha, question number 7 पढ़िए और आंसर दीजिए. दिशा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे आप? माइक इज नॉट वर्किंग इसलिए आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ठीक है. ओके. नताशा, कैन यू ट्राई फॉर एनी क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम. महक, क्वेश्चन नंबर 7. महक. डबल रेसेसिव प्लांट 16 में 4 so 3200 रेसेसिव Double. प्लांट 16 में 4 16 में डबल रेसेसिव. 16 में कितने निकाले आपने? 4 16 में 4. एनीवन? करेक्शन? Sir, only one. 16 में 1 only 1 16 में 1. आंसर 200. सॉरी सर Answer is 200. Is it? Okay. मानसी शेवाले, क्वेश्चन नंबर 8. मानसी शेवाले की भी आवाज नहीं आई. संस्कृति जेवगाले. संस्कृति, क्वेश्चन नंबर 8. Plants with parental trait. पेरेंटल ट्रेट. ओके, बोलिए. 16 में 10. 10. वेरी गुड. Therefore 3200 में आंसर आ जाएगा 2000. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 9. सलोनी. Yes, sir. बोलिए क्वेश्चन. 16 में 9. अरे तो क्वेश्चन तो बोल बेटा. Plants with complete dominant traits. कंप्लीट डोमिनेंट. हाँ. 16 में 9. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. 1800. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस सलोनी. वेरी गुड गोइंग. सिद्धि पाटिल, क्वेश्चन 10. Sir, हाँ. can I try? Yes, Natasha, you can try. Read the question number 10. Plants heterozygous for at least one trait. Heterozygous for at least one trait. Okay, try. 16 में 4 तो 3200 gives 800. 3200 हाँ 800. बेटा Natasha, heterozygous for at least one trait ना. तो when you will go for at least one trait, तो आपको if they are for both traits तो वो भी consider तो करना ही है. If you will go through checkerboard, yesterday's checkerboard, then you will find diagonal, they are heterozygous for both the traits. एक ऐसा diagonal position में सारे character थे that were heterozygous for both the traits. Is it? Yes, Can you sir. recall this? Okay. हाँ. So these are
These are heterozygous for both the traits, and four more are heterozygous for at least one trait, because when we expect the ratio 9:3:3:1, sorry, अपने को heterozygous करना है, we should not go for phenotypic character, and there are some traits that were like this. Is it? Yes, sir. And there are some traits like this. Perfect. So that are also heterozygous for one trait. Now this is heterozygous for one trait, and this is heterozygous for one trait. Yes, sir. So and these are heterozygous for both the trait. तो उन्होंने ये बोला at least one trait. तो भाई at least एक के लिए तो है ही, दोनों के लिए तो हमें क्या करना, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें. Perfect. Yes, sir. So anyone, how much in 16? Anyone? 12. 12. केवल 4 नहीं होंगे, जो इधर वाले होमोजाइगस थे ना, केवल वो 4 नहीं होंगे, बाकी एक एटलीस्ट एक के लिए तो होंगे ही होंगे. तो 16 में 12. बट वेरी नाइस नताशा, आई अप्रिशिएट दैट एट लीस्ट यू ट्राई. वेरी गुड. 16 में 12, तो 3200 में कितना? 2400. 2400. परफेक्ट. चलिए, सो ऐसे कुछ क्वेश्चन है. आई होप कॉन्फिडेंस कुछ हद तक बढ़ा होगा. ऋषिकेश कुमार. Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस बनेंगे ऋषिकेश, आपसे क्वेश्चन मैं दूं आपको. ट्राई करता हूँ sir. ओके, क्वेश्चन 11 के लिए ट्राई करो. क्वेश्चन 11 में आपको देता हूं, आपको पता करना है रेसेसिव फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट. कोई नहीं बोलेगा. रेसेसिव फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट. ऋषिकेश. Yes, sir. बोलिए 16 में कितने? 4. 16 में 4. एनीवन कैन करेक्ट? 7. 16 में 7. 16 में 7. 16 में 7. 7. 7. 3000. 16 में 7 क्यों बच्चों? मैंने रेसेसिव कहा ना. रेसेसिव का तो रेशियो कौन सा देखना था? मैं 9:3:3:1. ऋषिकेश, अंडरस्टूड? Yes, sir. और रेसेसिव फॉर एटलीस्ट वन ना, तो ये तो दोनों के लिए रेसेसिव, ये काउंट होगा ही होगा. ये एक के लिए रेसेसिव तो दूसरे के लिए डोमिनेंट, और ये भी एक के लिए रेसेसिव तो दूसरे के लिए डोमिनेंट. तो टोटल कितने हो गए? 7. Yes, sir. परफेक्ट. तो इसका आंसर हुआ 1400. चलिए, अब एक और पूछा जाए तो कौन बचा है जिसने अपने पापा से बात करा दी थी? ओके, हु इज मनीषा? हु इज मनीषा? एनीवन हु नोज मनीषा? एनीवन हु नोज मनीषा? ओके, Vishaka Aire. Vishaka Aire. Question number 12. Vishaka, are you there? Yes, Vishaka. sir. Okay. क्वेश्चन ध्यान से सुनिए विशाखा. आपको मुझे बताना है प्लांट डोमिनेंट फॉर अ सिंगल ट्रेड. विशाखा, देन वेद. दोनों नहीं बोल रहे हैं. सर वेदांत 16 पाटिल. में 9. हाँ वेद बोलो. 16 में 9 सर. विशाखा, कैन यू करेक्ट?
16 में 15. 16 में 15. अच्छा, एनीवन कैन करेक्ट? 16 में 6. 16 में 6. 16 में 6. क्या ही कर रहे हो तुम लोग यार, क्या ही करोगे? एनीवन कैन करेक्ट, रेज योर हैंड्स और आंसर. 16 में कितने? 6. कौन बोला 12? 16 में 12. 16 में 12. वेरी नाइस. 16 में 12. अरे भाई, फॉर अ सिंगल ट्रेड पूछा ना मैंने. ये जिस ट्रेड के लिए डोमिनेंट है उसके लिए ये भी होगा भाई. ये तो दोनों के लिए डोमिनेंट, लेकिन एक ट्रेड की बात कर रहा है ना, तो किसी एक ट्रेड के लिए इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा. ये दोनों के लिए डोमिनेंट, तो इसमें से किसी एक को ले लिया और ये एक रहेगा. तो 9 + 3 12. 16 में 12. सो 3200 में कितने? 2400. क्वेश्चन किसको नहीं समझा? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, किसको नहीं समझा क्वेश्चन? स्नेहल. स्नेहल नहीं समझा. बेटा स्नेहल, मैंने कहा आपसे, अच्छा हुआ आप बोली, कम से कम. अभी हजारों को नहीं समझा होगा इसमें, लेकिन आप बोली, आई अप्रिशिएट. डोमिनेंट फॉर अ सिंगल ट्रेड. बेटा स्नेहल, ये कितनों के लिए डोमिनेंट है? बोथ. बोथ. ये कितने के लिए है? 1. फॉर 1. और ये कितनों के लिए है? For 1. For 1. That means suppose we consider कि this is dominant for both A and B. This is dominant for A and this is dominant for B. So will it be fine? बात समझी स्नेहल? This is dominant for both, so I should write capital A, capital B. Perfect. Yes. This is dominant for 1, so I should write only single A, right? Yes. This is for 3, so I should write simple B, right? हाँ. अब मैंने आपसे पूछा फॉर अ सिंगल ट्रेड, ना किसी एक ट्रेड को. अब चाहे जो कर लो, ये तो दोनों के लिए, तो ये तो काउंट होगा ही होगा. Yes सर, समझा. ये एक ट्रेड के लिए आप पकड़ लो, राइट? Yes सर, Okay. clear. तो फाइनल क्वेश्चन. सर हाँ. सर अगर मतलब अगर आपने बोला कि एटलीस्ट फॉर अ सिंगल ट्रेड, तभी भी अपन 9 कंसिडर करते, तो फिर इधर भी 9 कंसिडर कैसे करेंगे? एटलीस्ट नहीं है ना. हाँ सर. प्लांट्स डोमिनेट फॉर अ सिंगल ट्रेड. सर मतलब आप जब एटलीस्ट भी बोलते हो, Yes. एटलीस्ट फॉर अ सिंगल ट्रेड, तब 9 कंसिडर करते हैं ना. यस यस, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होनी थी तनिष्का. वेरी नाइस. क्वेश्चन की फ्रेमिंग बेटा, वेरी गुड. फ्रेमिंग ऐसी होनी थी, प्लांट्स दैट आर डोमिनेंट फॉर अ सिंगल ट्रेड. Anyone. सर अगर इस क्वेश्चन से गए तो 6 ही आना चाहिए ना. यहाँ होना चाहिए था फॉर एनी वन ट्रेड. नहीं, लेकिन एनी वन भी हाँ. होता तो भी 9 कंसिडर नहीं. एटलीस्ट ऐसा- 1 होता तो 9 कंसिडर करते ना. प्लांट्स, इसको ऐसा करना था, प्लांट्स डोमिनेंट फॉर Only one trade. Only one trade. अरे सर ओनली वन एटलीस्ट ट्रेड, 1 होता. ओनली वन होता तो भी नहीं आता ना ये. अनिष्का सही कह रही है, इसको तो 9 को कंसिडर ही नहीं कर सकते आप. और ये तभी कंसिडर हो सकता है कि टेल मी द प्लांट्स दैट आर हेटेरोजाइगस, प्लांट्स दैट आर, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? जस्ट मिनट. सर अगर एटलीस्ट 1 होता तो 9 आ जाता, बट एटलीस्ट 1 नहीं है. इधर आपने सिर्फ सिंगल ट्रेड लिखा है ना. यस यस यस, फॉर अ सेम ट्रेड. यदि ऐसा मिलकर प्लांट डोमिनेट फॉर अ सेम ट्रेड, प्लांट यहाँ सिंगल की जगह सेम कर देता तो. हाँ सर. अब बोलो तनिष्का, आप बोलो. हाँ सर. मतलब भाई जिसके लिए ये है उसके लिए ये है, और ये हो नहीं सकता क्योंकि सेम ट्रेड की बात कर रहे हैं. हाँ Right? सर. हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड. आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. तो क्वेश्चन नंबर 13 एक पूछने का नंबर आता है
Tejas, are you there? Yes, sir. Okay. तेजस, मुझे एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13. Plants that are recessive for same trait. तेजस, बिल्कुल आंसर रेडी है, बोलो. हाँ स्नेहा किया, बोलिए. सर 800. 800. 16 में कितना निकाला आपने स्नेहा? 4 नहीं सर, तेजस. 4. अच्छा, तेजस ने बोला. ओके. 16 में 4. वेरी नाइस. स्नेहा आपने कितना निकाला? स्नेहा किया. अरे 16 में 4 ना. अब जब 16 में 4 तो 3200 में 800. परफेक्ट. वेरी गुड. एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट 14. क्वेश्चन नंबर 14. रैंडम आंसर मुझे चाहिए, नाम नहीं ले रहा हूं मैं. प्लांट्स दैट आर या छोड़िए. रेशो ऑफ perfect homozygous and heterozygous. Anyone? 1:1. 1:1. 1:1. No, perfect homozygous and heterozygous. 1:2. 9:1. 1:2. 1:2. 1. अरे होमोजाइगस रेशो हेटेरोजाइगस. परफेक्ट वाला होमोजाइगस 2 हैं, चलेगा? अरे चलेगा. हाँ. और हेटेरोजाइगस 4 है. 4 है. दिस विल बी 1:2. प्रथमेश भाई, जल्दी में गड़बड़ किए तुम. हाँ सर. तो यही तो ना, घाई करने को बोल कौन रहा है तुम्हें. लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. नताशा, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. Yes, sir. ओके. वन मोर कैंडिडेट, डॉक्टर कातकड़े. आर यू देयर? वैभव. टुडे वैभव बच्चाव इज नॉट देयर. वैभव बच्चाव, आर यू देयर? चलिए, कोई बात नहीं. स्नेहा देवरे, लास्ट क्वेश्चन. स्नेहा बड़े, लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 is ratio of. Question number 15 is we need to find out the ratio of parental and non-parental. Yesterday we solved, right? So right now we should try to find the ratio of dominant for both the traits and recessive for both the traits. Dominant for both the traits and recessive for both the traits. Students, tell me. 1:9. 9:1. 9:1. 9:1. 9:1. Dominant for both the traits and recessive for both the traits. So ratio will be 9:1. That is given in phenotypic ratios. I hope now you are damn confident. Dr. Jadhav. Dr. Jadhav, Prathamesh Jadhav and Ayush Jadhav. Are you there? Yes sir. Yes, sir. Okay, perfect. चलिए. और कोई क्वेश्चन तो इसमें मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है जो आप लोगों से ना बने. लेट मी चेक. देख लीजिए बोर्ड पर 2 मिनट के लिए. कोई डाउट हो किसी को तो मुझे बताइए. I hope no question. No more questions. चलिए. I should share the image.
थोड़ा सा प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा है इन क्वेश्चन से, एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और इसी कारण तनिष्का समझ भी पाई और क्रॉस भी कर पाई तनिष्का, एम आई राइट? Yes, sir. That's why practice is needed. चलिए, वेरी गुड. चलिए, कहां तक पहुंचे थे बच्चों हम लोग? कहां तक पहुंचे थे? Gene interaction. Gene interaction. इन इंटरैक्शन में मोनो हाइब्रिड हम लोग कर लिए थे, राइट? मोनो सर हाइब्रिड यश को इन कर लीजिए ना. Yash is not there. Who is Yash Patil? Yash Patil कौन है? Who is Yash Patil? न्यूसेंस क्रिएट करने लगे थे. मैडम क्या यश का मैसेज आया आपको? सर यश पाकले का था मैसेज. Who is Yash Patil? Anyone? चलिए, anyways, better to focus on our studies. Deviation from Mendelism. That was the heading, right? Deviations from Mendelism. Deviation from Mendelism. और इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी. One was one gene interaction and one was two gene interaction. One gene interaction में पहला हम लोग पढ़ रहे थे which one? Complete dominance. Incomplete dominance. That we have completed, right? जिसमें ratio of genotype and phenotype क्या था? Same. 1:2:1. Same. 1:2:1. Same. That was same. Genotype ratio, phenotype में genotype and phenotype ratio same. That is 1:2:1. Second, we need to discuss that was what? Codominance. Codominance. ये भी हमने देख लिया था बच्चों, कोडोमिनेंस. और कोडोमिनेंस में मैंने आपको बता दिया था ब्लड ग्रुप AB वाला केस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Alleles equally dominant. Alleles equally dominant. और थर्ड शायद आज अपने को देखना था, that was multiple allelism. Am I right? Yes, sir. मल्टीपल एलिज्म. मल्टीपल एलिज्म का मतलब ये होता है बच्चों, यूजुअली क्या होता है नताशा मैडम, समझेगा ध्यान से. व्हाट वी एक्सपेक्ट इज वन जीन टू alleles. Because if I'm writing one gene like tall, so there will be two alleles, capital T and small t. Natasha, agree? Yes, sir. Perfect. But if I'm telling you कि there are some genes having number more than two alleles, then that will be the phenomenon of multiple allelism. Like in case of human blood group,
human blood group, there are 4 alleles. IA, IB, IO, sorry, 3 alleles. IA, IB, IO. Since one character has more than 2 alleles, so the phenomena is known as multiple allelism. ये बात अलग है. In an individual, any of these two, इसमें से कोई 2 ही पहुंचेंगे, क्योंकि बंदा या बंदी डिप्लॉयड होता है. तो जीन लिखते समय तो मुझे क्या लिखना होगा? इन्हीं 3 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे. वो कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं? वो कॉम्बिनेशन 2 तरीके से बन सकते हैं. One will be homozygous combination and one will be heterozygous combination. Homozygous combinations will be IA and IB IA, IB. and IO. These are the 3 homozygous conditions. Heterozygous conditions क्या हो सकती हैं? IB. IA, IB, या इसी को करते हैं पहले. IA, IO, B के लिए हो जाएगा IB, IO, एंड इसके लिए एक अलग हो जाएगा IA, IB. ये 3 ये हो जाएंगे दोनों A ब्लड ग्रुप के लिए, ये हो जाएंगे दोनों B ब्लड ग्रुप के लिए, ये हो जाएगा O ब्लड ग्रुप के लिए, और ये हो जाएगा AB. तो इसके केस में भी आप देखोगे बच्चों, किसी एक बंदे में आ तो 2 ही अलील रहे, जो बंदा डिप्लॉयड होता है ना, और एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ही अलील की जरूरत पड़ती है, लेकिन अलील के ऑप्शंस तो ज्यादा है ना. सो सिंस देयर आर मोर अलील्स, so the phenomena is known as what? Multiple allelism. Understood? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay. Dr. Das, understood? Yes, sir. Okay. But to find out the number of genotypes, there is a formula. Which one? N plus N 1 in upon bracket N plus 1 upon. Number of genotypes. यानी बच्चों मल्टीपल एलिज्म का फिना हो और जीनोटाइप आपको निकालना हो, तो सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है n+1/2. लोकेश आप ठीक कहा मैंने? Yes, sir. इनकी वैल्यू क्या रखनी होगी मुझे? नंबर ऑफ अलील. नंबर ऑफ अलील. तो ब्लड ग्रुप के केस में कितने अलील होते हैं? 3. What I should do? 3 plus 1/2. And I should write, क्या लिखूं? 6 लिख दूं? 6. आप देखिए 6 जीनोटाइप भी बन रहे हैं, 3 इधर और 3. आया क्या कुछ समझ में? यस सर. अरे आया दोस्तों समझ में? Yes, sir. नताशा, थोड़ा बहुत न्यू कैंडिडेट्स, नताशा है, वैभव है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश राज थोड़ा कुछ समझे? यस सर. मैंने कुछ नहीं किया बच्चों. अलील जितने थे उसका नंबर और फिर +1 के उसका मल्टीप्लिकेशन और बाई 2. सो आंसर विल बी 6. और आप देख रहे हैं कि इसके 6 ही अलील्स बनी. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you tell me if there are 28 genotypes? If there are 28 genotypes, then what is the phenomena? How many multiple allelism? How many multiple alleles are there for a gene? If the genotype number is 28, number of genotypes are 28, then can you calculate the number of multiple alleles? Anyone?
Sir, can you please repeat? कौन बोला? Sir, Srinivas, can you repeat the question, sir? क्वेश्चन इज कि यदि आपको टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप 28 दिए गए और ये कहा गया कि दिस इज द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म एंड द टोटल नंबर ऑफ 7. जीनोटाइप्स आर 28. 7. ओके, वेरी गुड. कैसे निकाला स्वामी 7? n square plus n equals to 56. तो फिर फैक्टराइजेशन से 8 into 7. ओके, वेरी गुड. n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू, करना क्या था आपको? n plus 1/2 इक्वल्स टू 50. सॉरी, कितना दिया था मैंने? 56 ना? 28. 8 दिया था. ओके, सॉरी, 56 तो उसका आंसर था. हाँ, तो इक्वल्स टू 28 आया. तो आपने क्या कर दिया? n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 56 हो गया. n स्क्वायर प्लस n माइनस 56 इक्वल्स टू 0. अब ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे 10th. Yes, sir. n को ऐसे स्प्लिट करना है. n plus 1 इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 28. तो ये कितना हो गया? n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, इक्वल्स टू 56. इसको ऐसा कर लो, n स्क्वायर प्लस n माइनस 56 इक्वल्स टू 0. 1 को स्प्लिट मैंने किया तो मैं यहां कर सकता हूं 8n और ये हो सकता है माइनस 7n माइनस 56 इक्वल्स टू 0. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. यहां से मैंने निकाला n कॉमन तो बचा n प्लस 8 और यहां से निकाला 7 तो यहां से बचा n प्लस 8. तो एक हो गया n माइनस 7 और एक हो गया n प्लस 8. बात समझे क्या? अरे बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब ये हो गया कि उसके अलील्स, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे एक बार n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और एक बार रखेंगे n प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर n हो जाएगा कितना? 7 और यहाँ हो जाएगा कितना? माइनस 8, जो पॉसिबल नहीं. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Anyone any doubt in this one gene interaction? Anyone any doubt in one? Acha, what are the examples of incomplete dominance? Anyone? Snapdragon. 4 o'clock. Snapdragon. What are the examples of codominance? ABO blood group. ABO blood group. Array codominance. AB blood. AB blood group or multiple allelism ABO blood group system. Perfect. Yes. Yes, sir. Yes, sir. दोस्तों 2 जीन इंटरैक्शन की बात देखें. 2 जीन इंटरैक्शन के लिए पहले, चलिए इसको रहने देते हैं क्योंकि बोर्ड वर्क फिर आप ओके. बच्चों 2 जीन इंटरैक्शन, 2 जीन इंटरैक्शन का सबसे पहला मैंने एक बताया होगा आपको, दैट इज व्हाट? Epistasis. Epistasis. एपिस्टेसिस. बात को समझते हैं. एपिस्टेसिस का मतलब, एपिस्टेसिस होता है ऐसा फिनोमेना, the two genes interact in such a way, these two genes A and B, these two genes interact in such a way that if one is in its homozygous dominant presence, then whatever the other is will be not expressed.
इपिस्ट्रेसिस, यदि कोई भी एक जीन अपनी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो दूसरा कुछ भी हो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो जो एक्सप्रेस नहीं होने देगा वो इपिस्टैटिक, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, सप्रेस हो गया, वो हाइपोस्टैटिक। सो दिस जीन इज व्हाट? Epistatic, and this gene is what? Hypostatic. If A suppressing the expression of B, then it is epistatic and hypostatic. But ऐसा भी हो सकता है कि A अपनी रेसेसिव प्रेजेंस में भी दूसरों को एक्सप्रेस ना होने दे, whatever the condition of B, then it is also epistasis. मतलब ए जो है वो सप्रेस कर दे रहा है बी को और इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो एक बार ए अपनी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, और अनदर टाइम इट्स इन आवर रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। सो एक एपिस्टेसिस है कौन सी? Dominant. Dominant epistasis. Which one? Dominant. First. First. And epistasis and recessive epistasis. श्रद्धा पवार, आप हैं वहां पर? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। आवाज नहीं आती है श्रद्धा आपकी। चलिए, तो ये तो हुआ बच्चों एपिस्टेसिस। इसके एग्जांपल बताएगा कोई? Summer Fruit splash. color. Cucurbita. Cucurbita peck. कलर, Fruit color in Cucurbita pepo. समर स्क्वैश। इसी को कहते हैं ना कुकुरबिटा पेपो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ध्यान ये रखना है कि फ्रूट कलर की बात कर रहा हूं, फ्रूट शेप की नहीं, क्योंकि फ्रूट शेप किसी और का एग्जाम्पल। तो एपिस्टेसिस में डायग्राम तो अभी, फिगर तो अब नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ आपको एपिस्टेसिस का फिनोमेना मैंने बता दिया और रिजल्ट क्या मिलेगा वो बता दिया। परफेक्ट। रिजल्ट क्या मिलेगा? डोमिनेंट epistasis and recessive epistasis। देखिए, डोमिनेंट epistasis है, रेसेसिव epistasis है, दोनों ही रेशियो को मॉडिफाई तो इसी से करना है। अग्री? Yes. चलिए, Yes, तो sir. अब डोमिनेंट epistasis देखते हैं, यानी जब डोमिनेंट होता है तो रेसेसिव को सप्रेस कर देते। डोमिनेंट होता है तो रेसेसिव को सप्रेस कर देते। डोमिनेंट होता है या दोनों ही जीन डोमिनेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहां एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव है, और यहां पर भी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। जैसे मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन बताया था, डोमिनेंट फॉर बोथ, डोमिनेंट फॉर वन, डोमिनेंट फॉर बोथ, डोमिनेंट फॉर वन। तो डेफिनेटली जिसके लिए डोमिनेंट है, ये तो दोनों के लिए है, ये जिसके लिए डोमिनेंट होगा वो इसमें ऐड हो जाना चाहिए। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. डोमिनेंट रहेगा तो दूसरा कैसे भी रहेगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा ना। तो इसका रेशो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 12:3:1। देखिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. जबकि रेसेसिव epistasis मतलब रेसेसिव कंडीशन में होता है, अपनी रेसेसिव कंडीशन में होता है तो कोई कितना भी डोमिनेंट है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। रेसेसिव कंडीशन में रेसेसिव epistasis है ना, रेसेसिव epistasis मतलब मैंने बताया अपनी रेसेसिव प्रेजेंस में डोमिनेट कर रहा, तो ये तो करेगा ही, और जिसके लिए ये रेसेसिव उसके लिए ये भी रेसेसिव है। ये दोनों मिलकर कुछ और ही कलर दे देंगे, लेकिन ये तो किसी और के लिए और ये दोनों के लिए। तो यहां पर मेरे हिसाब से रेशो आना चाहिए कितना? 3, 4. ये शायद समझ में नहीं आ रही होगी बात किसी को। किसको समझ में आ गई और किसको नहीं आ रही है, टेल मी। किसको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, स्पष्ट बोलो। डॉक्टर दास, यू अंडरस्टूड? Aditi, you understood?
Yes, sir. Okay. Amol, Vashini, Amrita, you understood? Yes, sir. मतलब क्वेश्चंस दोनों से बन जाएंगे यदि क्वेश्चन दिए जाएं तो, इज इट? तन्वी को समझ में नहीं आया। तन्वी बेटा सिंपल है, देखो हम पढ़ रहे हैं मेंडल के लॉ से डेविएशन। मेंडल का रेशो कहता है 9:3:3:1। परफेक्ट। तन्वी अनम्यूट करके बात कीजिए। तन्वी अग्री? यस सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस यानी कोई जीन अपनी डोमिनेंट प्रेजेंस में होता है तो दूसरे के कैरेक्टर को दबा देता है। ये दोनों के लिए डोमिनेंट है। अग्री? यस सर। यस और नो तो फटाफट बोलो। दिस इज डोमिनेंट फॉर बोथ एंड दिस इज डोमिनेंट फॉर वन। तो ये क्या करेगा, दूसरे को दबा देगा। और इसमें भी डोमिनेंट है, लाइक इसमें क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल, यानी ए भी कैपिटल और बी भी कैपिटल, दोनों ही डोमिनेंट। और हम तो कह रहे हैं कि जब एक डोमिनेंट होता है, होमो या हेटेरोजाइगस जैसा भी हो, वो दूसरे को पूरी तरह से दबा देता है। तो ए ने बी को दबा दिया, और आने वाले 3 में भी तो ए ऐसे ही है। यस सर। तो ये भी क्या करेगा, ये इसको दबा देगा। तो टोटल मिलकर ये इफेक्ट कितना दिखाएंगे, 9+3 यानी 12 एक टाइप के प्लांट मिलेंगे। अग्री? यस सर। बाकी 3:1 तो है ही, लेकिन ऐसे जब रेसेसिव एपिस्टेसिस में होगा, ऐसे ही जब रेसेसिव एपिस्टेसिस में होगा तो रेसेसिव जो है वो सप्रेस कर रहा है ना, तो इसमें तो दोनों ही रेसेसिव है, इसमें तो दोनों ही रेसेसिव है, और इसमें से एक के लिए ये भी रेसेसिव है। तन्वी, नाउ यू अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। इसलिए मैंने क्या काउंट कर लिया, 4, 9+3+4 टोटल 16 होना चाहिए बस। देखिए जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? प्लीज चेक एंड टेल मी। Noted? Any doubt to anyone? कोई आवाज ही नहीं आ रही भाई। एनी डाउट टू एनीवन? अरे सो गए क्या? नहीं सर। No, sir. नो ना सर। इस स्ट्रेसेस में कोई डाउट? नो सर। No, sir. दूसरा कौन सा था स्नेहा मैडम एपिस्टेसिस के बाद? Complementary gene. कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। जब बच्चों जीन कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, जीन इंटरैक्ट इन सच अ वे दैट टू इंडिपेंडेंट जीन्स, जिसमें एक का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है लेकिन एक का अपना कैरेक्टर है, ए और बी दो जीन्स हैं, उसमें ए कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, बी नहीं करता। लेकिन यदि बी ए के साथ आ जाए, तो ए का इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ा देता। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. परफेक्ट। मतलब मैंने आपको कह दिया सप्लीमेंट्री का निकालने की कोशिश करते हैं, मुझे याद नहीं बट आई ट्राई, कि एक का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी दो जीन इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं ए एंड बी कि ए ही एक्सप्रेस होता है और कैरेक्टर देता है, बी का अपना कोई कैरेक्टर नहीं। लेकिन बी जब ए के साथ आता है तो ए के कैरेक्टर को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा,
क्या स्टेटमेंट में ऐसा है बी जब अपने डोमिनेंट मोड में ए के साथ आता है? ऐसा लिखवाया है क्या मैंने कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स? नहीं। तो यदि मैंने ऐसा लिखा है कि केवल जब बी ए के साथ आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली वो डोमिनेंट प्रेजेंस में आना पड़ेगा उसको, और डोमिनेंट प्रेजेंस में आना पड़ेगा तो ए 9 में तो दोनों डोमिनेंट है। सर और दोनों के डोमिनेंट प्रेजेंस में कहा ना आपने, लिखवाया भी वैसे ही था। तो रेशियो 9:7 है क्या? Yes, sir. Yes. Yes. लॉजिक पकड़ना है बच्चों, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ए का अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, ए का अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है और बी का अपना नो कैरेक्टर। बी का अपना इंडिपेंडेंट कोई कैरेक्टर नहीं, लेकिन यार जब बी अपनी डोमिनेंट प्रेजेंस में ए के साथ आता है, बी जब अपनी डोमिनेंट प्रेजेंस में ए के साथ आता है तो ए के कैरेक्टर को कई गुना बढ़ा दे। अब सर मुझे आपने डेफिनेशन सप्लीमेंट्री जीन्स की बताई और रेशो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का है। हाँ Yes, सर, sir. कॉम्प्लीमेंट्री में इंडिपेंडेंट दोनों का सेम इफेक्ट होता है। सर आपने ऐसे कहा था। अरे अरे एक लोकेशा, कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन पढ़िए। कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स two non-allelic genes independently produce same effect, but on interaction they produce a new trait. अच्छा ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का अपना इफेक्ट है। सप्लीमेंट्री पढ़िए अब। Dominant allele of one gene produce an independent effect, but dominant allele of another gene has no independent effect. But when comes together, the non-expressive allele modifies and the expression of another expressive gene. उसका रेशियो क्या लिखाया? Complementary का 9:7 and supplementary का 9:3:4. ये जो हुआ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ऐसी हुई, मतलब कि दैट रेशो 9:7 का जो रेशो आया है, यहाँ पर बी का अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, इज इट? Yes, sir. मतलब दोनों के अपने इफेक्ट है, ए का अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, बी का अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, बट व्हेन कम्स टुगेदर, जब ए और बी साथ में आते हैं तो एक नया कैरेक्टर दे देते हैं, इज इट लोकेशा? Yes, sir. Perfect. So this should be the ratio for complementary. ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपने को। Complementary मतलब complementary of each other. A has in the same effect, A and B has same effect, but when it comes together, they gives the new character. This is like 9. और ये 7 तो इसलिए क्योंकि इस पे एक ना एक रेसेसिव है ही, तो कोई ना कोई एक रेसेसिव रहेगा तो तीनों मिलकर अपना एक जैसा इफेक्ट देंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो हुआ 9:7 और सप्लीमेंट्री का हुआ, इफ आई एम राइट, 9:3:4, इज इट? Yes, sir. चलिए सर बहरहाल, लेकिन ये बोलो। सर कॉम्प्लीमेंट्री में मतलब कोई एक डोमिनेंट हुआ तो वो अपना इफेक्ट दे रहा है ना, लेकिन जब हाँ। दोनों भी रेसेसिव होंगे तो भी सेम इफेक्ट कैसे आ रहा है? अरे इसलिए ना, क्योंकि भाई दो जब डोमिनेंट होते हैं प्रथमेश, जब दोनों डोमिनेंट होते हैं तो एक नया कैरेक्टर आता है प्रथमेश, अग्री? हाँ। जब कोई एक डोमिनेंट होता है, समझना बात को, जब कोई एक डोमिनेंट होता है तो वो एक अलग कैरेक्टर देता है, बराबर? हाँ। अब ये तीन में क्या हुआ, एक डोमिनेंट है, हाँ। तो मान लेते हैं एक्स कैरेक्टर आ गया, अग्री? हाँ। अब ये तीन में कोई अपना ये तीन में भी एक डोमिनेंट है, हाँ। तो फिर एक एक्स कैरेक्टर आ गया, हाँ। और यहाँ तो कोई डोमिनेंट ही नहीं है। हाँ तो फिर वहाँ पे एक्स कैरेक्टर नहीं ना आएगा, तो यहाँ पर एक्स 9:7 कैरेक्टर, यहाँ क्यों नहीं एक्स कैरेक्टर, यहाँ एक्स कैरेक्टर क्यों आएगा भाई? क्योंकि जब ये दोनों आते हैं तो दोनों सेम इफेक्ट दे रहे हैं, इज इट? हाँ। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन सर अगर कोई डोमिनेंट ही नहीं हुआ तो फिर मतलब, है ना, मतलब कोई डोमिनेंट ही नहीं हुआ, मतलब मान के चल रहा हूँ कि कोई एक ही कैरेक्टर देगा ना वो। भाई
डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेटमेंट समझो। एक स्टेटमेंट कह रहा है प्रथमेश कि देयर आर टू इंडिपेंडेंट जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री की यदि मैं बात करूं तो गिविंग द सेम इफेक्ट, लोकेश यही पढ़ा अपन ने। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री में सेम कैरेक्टर सेम इफेक्ट दे रहे हैं। Yes, sir. Independent. हाँ, दो इंडिपेंडेंट जीन्स है बट गिविंग द सेम फिनोटाइप, इज इट? Yes, sir. एंड सप्लीमेंट्री में कोई एक ही दे रहा है, दूसरा दे ही नहीं रहा है, इज इट? Yes, sir. दूसरा दे ही नहीं रहा है। अब प्रथमेश इसको समझिए, यहां क्यों 4 करना पड़ा? क्योंकि जिसके लिए ये डोमिनेंट है उसके लिए ये रेसेसिव होगा। प्रथमेश सर सप्लीमेंट्री का नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में मुझको वो डाउट है कि मतलब हाँ, सप्लीमेंट्री क्लियर है तुम्हें? हाँ मैं सप्लीमेंट्री के थ्रू मैं कॉम्प्लीमेंट्री बताना चाह रहा हूँ। हाँ सप्लीमेंट्री में तुमने 4 क्यों काउंट किया? क्योंकि जिसके लिए ये डोमिनेंट है उसके लिए ये रेसेसिव है, हाँ और यहाँ तो दोनों के लिए रेसेसिव, तो तुमने इन दोनों को मिला दिया, क्योंकि वैसे भी एक तो इफेक्ट अपना दे ही नहीं रहा है, हाँ मतलब रेसेसिव है। अग्री? हाँ मतलब कैरेक्टर दे ही नहीं रहा तो वो रेसेसिव है ना? हाँ तो यही तो मैंने कहा 9:7 के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में जहां दोनों के अपने सेम इफेक्ट है, या तो सेम इफेक्ट है या तो सेम इफेक्ट नहीं है। अंडरस्टूड? सर मतलब क्या, मतलब सपोज एक मतलब एक डोमिनेंट हुआ और एक रेसेसिव हुआ। फिर से समझते नो प्रॉब्लम, क्योंकि बिना समझे तो अपन ना छोड़े। देखिए इसको बता देता हूं मैं। देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा ये 9 का मतलब होता है जहां ए और बी दोनों डोमिनेंट, चलेगा। 3 का मतलब होता है लाइक दिस, चलेगा। प्रथमेश दूसरा 3 का मतलब होता है ये, चलेगा। यस। अरे प्रथमेश भाई चलेगा? हाँ सर, आपका और आवाज इसका बीच में मतलब रुक ऐसा, अंडरस्टूड? रहा। हाँ अब मैंने कहा दो कंडीशंस। पहली बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का स्टेटमेंट कहता है कि when two independent genes giving the similar phenotype, is it written? हाँ सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट दे रहा, परफेक्ट। यानी मेरा कहना ऐसा है कि यदि ए बी होता है तो एक्स कैरेक्टर आ रहा है, हाँ बी भी आता है तो भी एक्स कैरेक्टर है, हाँ मतलब इसका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है स्मॉल नहीं बी का। हाँ स्मॉल भाई बी यदि एक्स है, बी की वजह से यदि एक्स हो रहा है तो उसके दूसरे एलील की वजह से रेसेसिव एक्स आ रहा होगा। हाँ अंडरस्टूड? हाँ अब यहां जब दोनों साथ में आते हैं तो ये कुछ वाई दे देते हैं। हाँ परफेक्ट। यानी मैंने कह दिया इसके लिए वाई हो गया, इसके लिए एक्स हो गया, इसके लिए एक्स हो गया। अब भाई यहां पर दोनों ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैरेक्टर दे रहे थे वो वाई कैरेक्टर था, वो दे ही नहीं रहा है, वाई दे ही नहीं रहा है। लेकिन सर अगर बी का रेसेसिव एक्स दे रहा है और ए का रेसेसिव एक्स दे रहे हैं दोनों भी, तो फिर लास्ट का जो है वो 1 ही रहेगा ना, तो वो अलग ही रहेगा ये 3 से। भाई फिर वही बात होगी। देखिए ये भी हो सकता है, उसके लिए जरूरत पड़ती है डबल रेसेसिव एपिस्टेसिस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस की। जहां तक बात है उसमें दो चीजें मिल जाती हैं। ऐसे समझो तुम, तो मैंने एक कोई कैरेक्टर दिया प्रथमेश जिसके केवल 2 ऑप्शंस हैं, हाँ सर समझा। दोनों डोमिनेट यदि आते हैं तो वाई, बराबर। हाँ और यदि दोनों नहीं आते हैं, कोई एक भी आता है तो एक्स। इस कंडीशन में या इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों के इफेक्ट सेम है ना। हाँ दोनों के इफेक्ट अलग होते तो डेफिनेटली एक नए कॉम्बिनेशन का नंबर आ जाता। अंडरस्टूड? यस सर। ओके बच्चों, हो सकता है इसके लिए
कुछ बच्चों को तो डेफिनेटली नहीं समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, बट घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज नॉट एट ऑल गिवन इन एनसीईआरटी, नॉट एट ऑल गिवन इन एनसीईआरटी। मैं क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं? बिकॉज केवीपीओआई का एग्जाम भी हमें फेस करा, तो हमें पता है, तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा बहुत सारे कराए, राइट। नेक्स्ट इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीजीन और प्लियोट्रॉपी, बस यही दो, एपिस्टेसिस, पॉलीजीन और प्लियोट्रॉपी, यही 3 पूछे जाते हैं नीट में, और वो तीनों में आपको डिटेल लिखो। परफेक्ट। डॉक्टर दास, एवरीथिंग इज गिवन इन मॉड्यूल, यू हैव कलेक्टेड द स्टडी मटेरियल? Yes, sir. Okay. So if you have collected the study material, if there is a booklet of genetics, then you will find complementary, supplementary, additive, lethal, and what not. Everything will get over there. But I'll dictate you, I will teach you the polygene, pleiotropy, and बस epistasis. तो पॉलीजेन और प्लियोट्रॉपी आई विल डिक्टेट यू एंड एक्सप्लेन। हाँ, रहा सवाल इन सब के लिए, तो मैंने जिन बच्चों को लिखाया है आई विल आस्क देम कि वो अपना एक जेरोक्स मुझे भेज देंगे। लोकेशा मैडम, अच्छा लोकेशा ज्वाइन कर रही है। आयुष, हैव यू रिटन जो मैंने लिखवाया था क्लास में? यस सर। परफेक्ट। तो आप मुझे मेंडल्स लॉ के डेविएशन का पीडीएफ जो आपने नोट्स बनाए, अच्छे से बनाए नोट्स की नहीं? हाँ सर। ठीक, तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केवल 3 या 4 पेज जो भी होंगे वो आप मुझे पीडीएफ भेज सकते हैं? हाँ सर। ठीक, आप मुझे पीडीएफ भेज दीजिएगा। आई शेयर विद सम न्यूज़। नताशा, विल इट बी फाइन? Yes, sir. Okay, I'll share some PDF notes with you of my Okay, sir. students. So please go through, उसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो सारी चीज जमा करके रखिए। Any day we will get it solved. Okay? Okay, sir. चलिए, फिर इस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा बच्चों अगली क्लास के लिए। Tomorrow is there my class? Yes, sir. Perfect. So we expect that tomorrow we'll finish this polygene, pleiotropy, and non-Mendelian inheritance. After that, we will switch for molecular biology. And बीच का एक portion जो miss कर रहा हूं मैं, जो छोड़ रहा हूं, that is sex determination and pedigree. That is expected to be understood and solved only in offline mode. So after that, I will switch to molecular biology. Perfect. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ऋषिकेश कुमार and rest all. केवल 2-3 नए कैंडिडेट हैं, नताशा, यश और वैभव। तो ये जो नए कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए उसे ऑफलाइन मोड में जब भी अपन चलाएंगे तो एक बार सबको, क्योंकि आई होप कि everyone is in the position to need or having a requirement of pedigree one more time. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेडिग्री तो आप सबको एक बार लगेगी ही, तो पेडिग्री हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेंगे। और रहा सवाल ऑफलाइन कब होना है, सो जब भी गवर्नमेंट परमिशन आएगी बच्चों, कुछ धीरे धीरे ग्रेजुअल अनलॉक हो रहा है, जैसी परमिशन आती है उसके बाद 15 दिन आई पर्सनली बिलीव इन कंप्लीट सैनिटाइजेशन ऑफ द फ्लोर्स एंड द क्लासरूम्स। Only after that we will resume our classes, offline classes. Okay, online will be continued. Done? Yes, sir. Going to close the session. Be prepared with the questions. इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगली क्लास के पहले फिर से कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा, and then we'll switch to polygene and pleiotropy. All the best.